Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study malnutrition. So let's start the lecture and understand. See, our body performs different types of work through different organs and organ systems. For proper functioning of these organs and organ systems, our body requires different nutrients as well as energy. We intake these different nutrients and energy through food or diet. If every required nutrients or energy is available in our food, and if every required nutrients is available in proper proportion, then this would be known as balanced diet, right? Balanced diet, or we can say that proper nutrition, right? So this is known as balanced diet or proper nutrition. But if some or any nutrients, right, whether it is macronutrients or micronutrients, right, so if any or some nutrients are not available in our diet, right, in our diet, or second thing is that if every required nutrients is available in our food but not in proper proportion, right, but not in proper proportion. Proportion means see, if body requires 14 gram of protein but we take only 20 gram of protein, so we can say that protein is available in our diet but we are not taking which is the required quantity, right, and we are taking less quantity which is required, then this would be also known as malnutrition, right. So if any or some required micronutrients or macronutrients, or we can say that nutrients, so if some or any nutrients are not available in our diet, and second thing is that if nutrients are available but nutrient is not in proper proportion, then this would be known as malnutrition, right. और इसको हम और भी अन्य जो है डेफिनेशन से यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट. सो malnutrition is a condition in which body does not get complete nutrition due to improper intake of nutritious substance and food, which is known as malnutrition, right. So simply we can define that malnutrition is a condition in which the body does not get complete nutrition or proper nutrition due to improper intake of nutritious substance and food, then this is known as malnutrition. Or in other words we can say that, right, malnutrition is a condition in which body does not get all required nutrients in a diet, right. If some or any nutrients are not available in our diet, and second thing is that if some or any nutrients are available in diet but not in proper proportion, then this condition would be known as malnutrition. See, हमारी बॉडी को, राइट, हेल्दी रहने के लिए, राइट, तो हेल्दी होने के लिए आवर बॉडी रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज एनर्जी, और ये दोनों ही हमको किससे प्राप्त होती हैं? फूड से प्राप्त होती हैं. तो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, राइट, हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट, एंड वी टेक एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू फूड, राइट. इसीलिए अगर हमारे फूड में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हैं अवेलेबल होंगे और सही प्रोपोर्शन में होंगे तो वो बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार होगी. बट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल, राइट, बट इफ फूड डज नॉट कंटेन इनफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, राइट, फाइबर है, तो यही जो इनटेक है इसको ही क्या कहा जाएगा? माल न्यूट्रिशन कहलाएगा. इसके साथ ही इफ आवर फूड डज नॉट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, देन दिस वुड बी आल्सो नोन एज माल न्यूट्रिशन, राइट. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ देयर आर, राइट, 3 मेन सिम्टम्स. तो यदि माल न्यूट्रिशन होता है तो उसके 3 सिम्टम्स जो है वो शुरुआती दौर में ही दिख जाते हैं. सबसे पहला क्या हो जाएगा? स्टंटिंग हो जाएगा,
right? So stunting, wasting and underweight are the symptoms of malnutrition. Now understand what is stunting, right? This may be asked as a 3 marker question. तो हम यहाँ पर जो है stunting को समझते हैं. See, if the height of a child is less in proportion to his age, then this is known as stunting, right? या बौनापन जिसको हम कह सकते हैं. तो if the height of a child is less, right, in proportion to his age, then this is known as स्टंटिंग, राइट? तो माल न्यूट्रिशन का जो सिम्टम है वो क्या हो जाएगा? स्टंटिंग हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा. देन सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेस्टिंग हो जाएगा. इफ द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इज लेस इन प्रोपोर्शन टू हिज हाइट, देन इट इज नोन एज वेस्टिंग. देखिए, अंडर वेट में और वेस्टिंग में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सीधी सी बात है, बॉडी की जितनी हाइट होती है उसके हाइट के अनुसार ही जो क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए. तो यदि जो वेट है, राइट, वो हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट, तो उसको ही क्या कहते हैं? वेस्टिंग कहते हैं. सो इफ द वेट ऑफ अ चाइल्ड इज लेस इन प्रोपोर्शन टू हिज हाइट, राइट, तो हाइट के प्रोपोर्शन में जब वेट कम होता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वेस्टिंग कहते हैं. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडरवेट. सी, if weight of child is less in proportion to his age, then this is called as underweight, right? तो जैसे मान लिया कि अगर किसी बच्चे की जो है एज कितनी है? 10 ईयर्स है, तो नॉर्मली 10 ईयर्स के बच्चे का जितना वेट होना चाहिए उससे कम वेट यदि किसी बच्चे का है तो उसको ही क्या कहा जाएगा? अंडरवेट कहा जाएगा, राइट? तो यदि वेट जो है, यदि वेट एज के अनुसार क्या है? कम है, तो उसको ही क्या कहते हैं? अंडरवेट कहते हैं, राइट? दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि यदि किसी चाइल्ड की 100, जैसे हमने मान लिया कि यदि किसी बच्चे की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है. अब 150 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए, परंतु उससे क्या है? कम वेट है. जैसे 150 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली जो है होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि 60 जो है केजी वेट होना चाहिए, परंतु 150 सेंटीमीटर होने के बावजूद यदि वेट केवल कितना है? 40 किलोग्राम है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वेस्टिंग कहा जाएगा. और यदि एज के अकॉर्डिंग जो है हाइट नहीं है तो उसको ही क्या कहते हैं? हम स्टंटिंग कहते हैं, राइट? तो WHO और यूनिसेफ के अनुसार जो है माल न्यूट्रिशन के ये 3 क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, right? Now we will study the causes of malnutrition, and this is important. This may be asked as a 5 marker question or 11 marker question, right? 5 marker question सीधा पूछा जा सकता है, right? Define the reasons or causes behind malnutrition, right? या 11 marker में पूछा जा सकता है कि what are the different causes of malnutrition in India as well as मध्य प्रदेश, राइट? तो मध्य प्रदेश में या भारत में मालन्यूट्रिशन या कुपोषण के क्या कारण होते हैं, राइट? ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है. या सिंपली इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ malnutrition, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड the causes or reason behind malnutrition, right? So the first is malnutrition occurs due to not getting balanced diet, right? See, I told you our body performs different types of work, and for proper functioning of body required nutrients should be available in our food. तो यदि हमारे फूड में required nutrients available हैं और proper proportion में है, राइट, प्रॉपर प्रोपोर्शन में है और अवेलेबल है, तो उसको ही बैलेंस डाइट कहते हैं. और यदि कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट को कंज्यूम नहीं कर रहा है तो वही क्या होगा? माल न्यूट्रिशन का जो है इफेक्ट होगा. इसीलिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है ढेर सारा भोजन खा रहा हो, या somebody is consuming food more than required, बट उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि उसकी वो बैलेंस डाइट होगी, राइट? हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल और केवल जो है चपाती, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो केवल और केवल सुबह शाम जो है राइस ही खाना पसंद करता है, राइट? ही डज नॉट इनटेक चपाती, ही डज नॉट टेक मिल्क, ही डज नॉट टेक फ्रूट, केवल और केवल उसको राइस और समोसे ही खाता है, तो उससे उसकी जो है बैलेंस डाइट नहीं होगी. तो इफ
राइट यदि बैलेंस डाइट को कंज्यूम नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फूड इवन इफ पर्सन गेट्स इनफ फूड। राइट जैसा कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति समोसा खाए, जलेबी खाए, राइट, परंतु उसको जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर उसके जो है डाइट में इंक्लूड नहीं होंगे तो फिर सीधी सी बात है उसको जो है माल न्यूट्रिशन होगा। राइट जैसे कोई व्यक्ति ना तो जो है दूध लेता है, राइट, ना ही इफ अ पर्सन डज नॉट इनटेक मिल्क और बटर, राइट, और मीट, सो डेफिनेटली उसकी जो डाइट है उसमें जो फैट है उसकी क्वांटिटी कम होगी, तो वह भी क्या होगी, माइक्रो जो है माल न्यूट्रिशन होगी। राइट तो यदि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं अवेलेबल नहीं है तब भी वो माइल्ड न्यूट्रिशन होगा। या फिर क्या होगा, राइट, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड बट नॉट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। राइट जैसे हमने कह दिया कि 40 ग्राम जो है प्रोटीन जो है लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, बट ही इज टेकिंग ओनली 20 ग्राम प्रोटीन, देन इनकी वजह से भी क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। सो देयर आर 3 कंडीशन, माल न्यूट्रिशन अकर्स ड्यू टू नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट। सेकंड क्या हो जाएगा कि जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड में अवेलेबल ही नहीं है। तीसरी क्या हो जाएगी कि न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में अवेलेबल तो हैं लेकिन उनका क्या है, प्रोपोर्शन सही नहीं है। राइट और इसके लिए इकोनॉमिक, सोशल और मैनी अदर रीजंस जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा। सी तो अगर हम भारत की बात करें, सो पॉवर्टी इज द मदर ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया एज वेल एज मध्य प्रदेश, और पॉवर्टी की वजह से माल न्यूट्रिशन की जो सिचुएशन है वह भी देखने को मिलती है। राइट और अगर हम भारत की बात करें, सो अबाउट 25.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो भारत की 25.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो रूरल एरियाज में रहती है और वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। तो वहीं अर्बन जो है 13.7 जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। और अगर बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो जाहिर सी बात है इससे हो सकता है कि द पर्सन हु इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन वह प्रॉपर बैलेंस डाइट ना ले सकता हो। राइट या ये भी हो सकता है कि ही इज टेकिंग फूड बट जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके फूड में अवेलेबल ना हो या उनका सही प्रोपोर्शन अवेलेबल ना हो, क्योंकि एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए, राइट, यू विल हैव टू परचेज मिल्क, फ्रूट्स, सैलड्स, राइट, एज वेल एज नट्स, राइट, और यू विल हैव टू परचेज मीट एज वेल एज, राइट तो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनटेक करने के लिए आपको जो है मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है यू कांट अफोर्ड फ्रूट्स, नट्स, राइट, वेजिटेबल्स, राइट, प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से भी जो है पॉवर्टी जो है माल न्यूट्रिशन को इंक्रीज करती है। सेकेंड क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। सी फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एडिक्वेट फूड जो है अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट जो न्यूट्रिशनल क्राइसिस है वो अराइज हो रहा है। उसका कारण क्या है कि उसका कारण है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड में है ही नहीं है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। द फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो हमारा कॉमन पीपल है, राइट, कॉमन पीपल डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन व्हाट शुड बी ईटन एंड व्हाट शुड नॉट बी ईटन एंड हाउ मच एंड हाउ मैनी शुड बी ईटन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी जानकारी मोस्ट ऑफ द पीपल को जो है अवेलेबल ही नहीं होती है। राइट दूसरी चीज़ क्या हो जाएंगी, लोगों की जो है ईटिंग हैबिट भी नहीं होती हैं। राइट अगर हम देखें तो 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं, राइट, दे इनटेक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर उनको कोई भी भोजन टेस्टी लगता है तो वो उसका इनटेक करेंगे, बट इफ फूड इज नॉट टेस्टी देन वो उसको क्या करेंगे, उसका इनटेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड हैबिट, राइट, कई बार पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होने की
बाद भी जो है हम प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं करते हैं और इस वजह से भी जो है माल न्यूट्रिशन अराइज होता है। थर्ड क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा, राइट। हमारा अगर हम देखें सो आवर बॉडी फंक्शंस एट लिक्विड बेस, राइट, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, राइट, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही ऑक्सीजन एंड जो फूड है वो डिफरेंट ऑर्गन की सेल्स तक जो है पहुंचता है। इसीलिए हमारी बॉडी को जो है हेल्दी रहने के लिए जो है पर डे वेट के अनुसार जो है वाटर अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और यदि वाटर वेट के अनुसार अवेलेबल नहीं होगा या वाटर का इंटेक नहीं होगा तो वह भी माल न्यूट्रिशन का जो है माल न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आयरनी इज दैट इंडिया में जो पोर्टेबल वाटर है, राइट, पोर्टेबल वाटर है उसकी कमी है, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर जो है उसकी कमी है। साथ ही साथ जो भी वाटर सोर्सेज हैं, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे कोई रिवर हो, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन और वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन की जो है अवेलेबिलिटी प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता। साथ ही साथ जो वाटर होता है वो कंटामिनेटेड होता है, राइट, उसमें कई प्रकार के, राइट, टॉक्सिक केमिकल्स जो है इंक्लूड होते हैं। इस वजह से कई प्रकार की जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं वो होती हैं। साथ ही साथ जो कंटामिनेटेड वाटर है उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। देन फोर्थ क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगा, राइट। तो मैंने बताया है कि इन इंडिया द फूड इज प्रेजेंट, राइट, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री एंड इंडिया प्रोड्यूसेस enough amount of food, or we can say that India is producing food or grains more than required, but despite this India is having malnutrition problem, right, because lack of awareness, right। lack of awareness का मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस होने के से तात्पर्य ये है कि लोगों को जितना भी न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, राइट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। साथ ही साथ हमारे देश में जो ईटिंग हैबिट है वह भी प्रॉपर नहीं होती हैं, राइट। इन इंडिया 90% पीपल टेक फूड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। अगर उनको कोई भी चीज़ टेस्टी लगती है तो वो उसका इंटेक करेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में जो जंक फूड है, राइट, या जो पैकेज फूड हो जाएगा, राइट, जंक फूड हो जाएगा, राइट, या फिर हम जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रीट फूड हो जाएगा, राइट, उसका इंटेक बढ़ रहा है, राइट। पीपल नो दैट दिस फूड इज नॉट सुटेबल फॉर देयर हेल्थ, डिस्पाइट दिस वो जो स्ट्रीट फूड है या जंक फूड है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, राइट, समोसा है, उसको खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट ऐसी है कि दे प्रेफर टेस्ट ओवर देयर हेल्थ, राइट। तो ईटिंग हैबिट सही नहीं है। साथ ही साथ ये है कि उनको जो है ईटिंग हैबिट नहीं होती है, फिर न्यूट्रिएंट्स की जो है इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। साथ ही साथ फैमिली में भी, राइट, फैमिली में भी जो फूड का इंटेक होता है वह भी अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है काफ़ी ऑयली होता है या उसमें भी जो है जैसे कार्ब्स की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम इंडिया में देखें तो कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉर्निंग में भी जो है चपाती, राइट, चपाती हो जाएंगी, इवनिंग में राइस हो जाएंगे, तो ये दोनों ही सोर्सेज जो हैं कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस जो है माल न्यूट्रिशन की जो है प्रॉब्लम बनी हुई है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, हेल्थ सर्विसेज हो जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें तो इंडिया में 1 मिलियन, राइट, 1 मिलियन या हम कह सकते हैं कि अराउंड इंडिया में अराउंड जो है 10 लाख जो है डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। कितनी, 1 करोड़ जो है 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या के लिए, राइट। सो 1 मिलियन डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। और इस तरीके से देखा जाए तो देयर इज 1 डॉक्टर ओवर 1300 सिटीजन्स। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर 1 गवर्नमेंट डॉक्टर की बात करें, राइट, 1 डॉक्टर हु इज वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो 1 डॉक्टर इन गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो देश के 13,000 लोगों पर क्या है, एक डॉक्टर कार्य करता है।
और डॉक्टर्स की कमी होगी तो हेल्थ सर्विसेज बेहतर नहीं होंगी, और हेल्थ सर्विसेज बेहतर नहीं होंगी तो उससे हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगी, लोग हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होंगे, और हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो ना ही फूड हैबिट जो है चेंज होंगी, और ना ही जो है हेल्थ कॉन्शियस लोगों में जो है उत्पन्न होगी। राइट नाउ 6 इज डिक्लाइन इन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। राइट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज इज ऑकरिंग, तो क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देन जो सीजनल मानसून है उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज राइट फ्लक्चुएशन इन मानसून, और जो है वर्ल्ड लेवल पर जो सिचुएशन जो चेंज हो रही है उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। राइट सो अकॉर्डिंग टू study conducted by United Nations, the decline in agriculture production directly or indirectly due to climate change, right, in more than 14 जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो है माल न्यूट्रिशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली पॉपुलेशन को कंज्यूम करने के लिए जो है ग्रेन्स या हम एक तरीके से कहें कि जो फूड है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। देन 7th क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोरोना पेंडेमिक हो जाएगा। राइट सी देयर वाज अ पॉवर्टी विच वाज प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट हमारे देश में गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स के शॉर्टेजेस को फुलफिल करने के लिए, पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट लॉन्च्ड मैनी गुड और वी कैन से दैट कि अच्छे प्रोग्राम को लॉन्च किए, जिसकी वजह से जो सिचुएशन इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। राइट पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया डे बाय डे, बट अगर हम एक तरीके से देखें तो पॉवर्टी तो डिक्रीज हो रही है बट हेल्थ कॉन्शियसनेस अभी इंक्रीज नहीं हो रही है, साथ ही साथ लोग हेल्थ को अभी भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं और लोग अभी भी बैलेंस डाइट को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। सो वी कैन से दैट जो पॉवर्टी है, राइट पॉवर्टी जो है कम हो रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है, राइट और इससे एक हद तक जो है माल न्यूट्रिशन पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, बट कोरोना ने पूरी की पूरी जो है सिचुएशन को ही ख़राब कर दी। कैसे, राइट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स, राइट जो डेली वेजेस वर्कर थे जो कि एम्प्लॉयड थे उनका एम्प्लॉयमेंट अब क्या है चला गया है, एंड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे आर अनेबल टू परचेज फूड ग्रेन्स, राइट। और आपने जो है न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो लॉकडाउन है इम्पोज है उनकी वजह से जो पॉवर्टी फिर से क्या होती है इंक्रीज हो सकती है, राइट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है, और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उससे जो माल न्यूट्रिशन है वह भी क्या होगा इंक्रीज होगा। देन क्या हो जाएगा फीमेल क्या हो जाएगा इलिटरेसी हो जाएगा। सी द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हमें उन फ्रूट्स को ग्रेन्स को कैसे कंज्यूम करता है इट डिपेंड्स ऑन अस, एंड एक्चुअली ये डिपेंड करता है जो हमारे घर में महिलाएं हैं जो कि क्या करती हैं फूड को प्रिपेयर करती हैं। अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हेल्थ कॉन्शियस ना के बराबर है, साथ ही साथ वीमेन जो एजुकेशन है वह भी क्या है बहुत ही खराब है। वीमेन एजुकेशन इन रूरल इंडिया इज़ पैथेटिक, राइट और इस वजह से जो रूरल वीमेन है वो ना तो हेल्थ कॉन्शियस हैं और ना ही उनके पास में इंफॉर्मेशन है और ना ही वो अवेयर है। इसीलिए एक तो वो बैलेंस डाइट के बारे में उनके पास में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, राइट। दूसरी चीज़ उनके पास में जो भी अवेलेबल मटेरियल होता है उसको भी वो प्रॉपर तरीके से जो है प्रिपेयर नहीं करती हैं। जैसे कई बार सब्जी को इस तरीके से कुक किया जाता है कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्राई करते समय ही क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वीकली, राइट अगर हम देखें तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए वीकली मेन्यू क्या होना चाहिए डिसाइड होना चाहिए, बट वीकली मेन्यू भी डिसाइड नहीं होता है कब कौन सा फूड लेना चाहिए, राइट। तो इस वजह से भी अगर हम देखें तो बैलेंस डाइट की जानकारी नहीं होती है, वीकली मेन्यू क्या होता है, राइट। साथ ही साथ जो अवेलेबल जो सीरियल्स होता है, अवेलेबल जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनको भी
कैसे न्यूट्रिशन उसको कैसे न्यूट्रिशन बना के सर्व किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है, राइट। वीमेन प्रेफर टेस्ट ओवर हेल्थ, तो इसीलिए अधिक से अधिक टेस्टी बनाने पर जो है फोकस किया जाता है। इसी वजह से एक तो भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी संख्या में और कमी हो जाती है, और दूसरी चीज़ कई बार जो फूड है वो स्पाइसी हो जाता है, जिसकी वजह से और हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन अब्सेंस ऑफ फ्रूट्स, मिल्क एंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, राइट। तो फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट, फ्रूट्स, राइट, फ्रूट, सलाड्स, मिल्क एंड सीरियल शुड बी अवेलेबल इन आवर फूड, राइट। तो ये अगर हमारे फ्रूट्स में, जैसे अगर हम देखें तो हमारी डाइट में अगर फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, मिल्क हैं या सीरियल्स हैं, ये अगर डाइट में इंक्लूड नहीं होंगे तब भी उससे जो है न्यूट्रिशन बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्प्राउट ग्रेन्स, राइट, जो है माल न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में एवरी, राइट, जिसकी भी एज 30+ है, एवरीबडी इज जो है वो अपने ऊपर कम से कम जो है कि पर डे का 50 रुपये तो खर्च कर ही देता है, राइट। कैसे, राइट, एवरीबडी हु इज, मैं यहाँ पर 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में वो डेली का 20 से 30 रुपये जो है खर्च कर देता है। बट अगर वही व्यक्ति जो है अपनी जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू है, वाइन है, इसके ऊपर खर्च ना कर वह उसका मिल्क ले सकता है, राइट, सलाद ले सकता है, फ्रूट्स को इंटेक कर सकता है, तो उसकी हेल्थ पर क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट। अगर हम देखें तो गर्ल्स आर एनेमिक इन इंडिया, उसका कारण क्या है कि बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए जो है गर्ल्स में न्यूट्रिशन और कम होता है। इसी वजह से अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, माल न्यूट्रिशन इज मोर प्रिवलेंट अमंग गर्ल्स। देन क्या हो जाएगा, लैक ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जो न्यूट्रियस फूड है वो क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, बट उसको भी प्रेफर नहीं किया जाता है, राइट, या उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस नहीं होती है, राइट। फिर उसके साथ ही जो यंग एज है, बिकमिंग और वी कैन से दैट बिकमिंग मदर और गेटिंग मदरहुड, ये था यंग एज। तो जब यंग एज में मदरहुड जो है प्राप्त हो जाता है तो उसनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से भी जो इन्फेंट है उसके न्यूट्रिशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन जो अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल है, राइट, प्रॉपर स्लीपिंग ना होना, राइट, गुड अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसका इंटेक ना करना, बैलेंस डाइट को ना ग्रहण करना, इस वजह से भी। और फोर्थ क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स की जो डिसीजेज होती हैं उनसे भी जो है माल न्यूट्रिशन की जो सिचुएशन है वो वर्स जो है और ज़्यादा क्या होती है, ख़राब हो जाती है। सो दीज वर द काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, राइट, ओके, यस। ये 3 पॉइंट और बच्चों के, जिसमें 15th क्या हो जाएगा, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में लोगों को न्यूट्रिशन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। व्हाट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किन सोर्सेज से प्राप्त होता है। इसकी जब तक प्रॉपर फंक्शनिंग लोगों को पता नहीं होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक वो प्रोटीन का इंटोक, जो प्रोटीन को कहाँ से लेना है, फैट को कहाँ से लेना है, फाइबर को किससे लेना है, उसके बारे में वो सोच ही नहीं सकते। तो जो है न्यूट्रिशन की भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, राइट। और अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो माल न्यूट्रिशन जो है माल न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो दीज वर द रीजंस और काजेज फॉर या कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, राइट। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, राइट। और ये जो है 11 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट नेगेटिव इफेक्ट डज माल न्यूट्रिशन हैव ऑन हेल्थ। तो हेल्थ पर माल न्यूट्रिशन का दुष्प्रभाव कैसे पड़ता है, राइट। डिफाइन, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में आ सकता है, राइट। या हम कह सकते हैं कि
जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, राइट, कि हाउ माल न्यूट्रिशन, राइट, इज अ वेरियर फॉर गेटिंग अ गुड हेल्थ, राइट। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, अफेक्ट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, राइट, या मॉल न्यूट्रिशन के क्या परिणाम होते हैं, इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, राइट, या मॉल न्यूट्रिशन की वजह से जो है हेल्थ पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम समझते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, फर्स्ट क्या हो जाएगा कि इफ पर्सन टेक्स फूड बट उसके फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उससे क्या होगा, राइट, उससे उसके हेल्थ पर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। साथ ही साथ लोगों की क्या होगी, जो है इम्यूनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन द फर्स्ट थिंग इज दैट कि लोगों की या पर्सन की इम्यूनिटी क्या होगी, कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी सो देयर इज अ चांस दैट जो व्यक्ति है वो कई प्रकार की डिसीजेस को एक्वायर करे। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो चिल्ड्रन होते हैं, राइट, चिल्ड्रन को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से भी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस वजह से कई बार सिवियर केसेस में उनकी डेथ भी हो जाती है। देन अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एनीमिया जो है इंडिया में वीमेन में क्या है, प्रेवलेंट है, राइट। हम एक तो देखते हैं कि जो है देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल, इसलिए गर्ल के लिए न्यूट्रिशन के उतने अवेलेबल सोर्सेज नहीं होते हैं। इस वजह से जो एनीमिया है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में क्या है, प्रेवलेंट है, राइट। इसके साथ ही गाइटर डिसीज़ भी जो है वीमेन में क्या है, प्रेवलेंट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रिकेट्स की या नाइट ब्लाइंडनेस की एक्सेट्रा, जो डेफिशिएंसी जितनी भी डिसीजेज हैं वो हमारे जो डेफिशिएंसी जो डिसीजेज हैं वो बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन के कारण ही होती हैं। थर्ड क्या हो जाएगा कि जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है, अगर हम इकोनॉमिक तरीके से देखें तो बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन human productivity decreases to 10 to 15%. How? If you take nutritious food, then definitely all the day long you would have a energy, right? You would have energy. और आप आपके वर्क को पूरे पैशन के साथ में करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 से 15% या 10 to 15% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट यदि आप ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो उससे हो सकता है कि यू हैव मेंटल टायर्डनेस, राइट, या फिर आप जो है थकान महसूस करते हैं, आप आपका 100% नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। और प्रोडक्टिविटी अगर गिरती है तो डेफिनेटली इससे जीडीपी पर भी क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब जो जितने भी अगर हम देखें तो जो माल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है समझ सकते हैं, राइट। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन एडल्ट्स, तो एडल्ट्स पर क्या होते हैं, साथ ही साथ वीमेन और मदर्स पर क्या होते हैं, चिल्ड्रन पर क्या होते हैं, सोसाइटी पर क्या होता है, राइट। इस तरीके जो है, इस तरीके से जो हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑन एडल्ट्स हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन इन एडल्ट इज वेट लॉस। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से एडल्ट में वेट लॉस होता है, राइट। और वेट लॉस जो है वो 10% तक का क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, राइट। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वेट है वो इट इज मेजर्ड यूजिंग बॉडी मास इंडेक्स, और क्या हो जाएगा, VMI हो जाएगा। VMI is calculated by dividing total body weight, right, by square of body height meter, right। और अगर हम देखें यहाँ पर जो VMI है ये 16 से कम होता है तो इट जो है इट इंडिकेट द एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें सो बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन जो कोई भी व्यक्ति है वो डिफरेंट जो डिसीजेज हैं उनका विक्टिम हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो इफेक्ट है, ये अगर हम एक तरीके से देखें जो वेट लॉस है इसको हम VMI से क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सो इफेक्ट, राइट,
तो इसको जो है VMI से काउंट करते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये 3 नंबर के लिए आप याद रखें। VMI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल बॉडी वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, राइट। इफ VMS जो है 16 से कम होता है तो ये एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा भी जो अदर सिम्टम है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एबिलिटी हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो उससे व्यक्ति के शरीर में हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वीकनेस आएगी, राइट। वीकनेस होगी तो उससे जो है एबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। सेकेंड जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से व्यक्ति जो है टायर्ड क्या करता है, फील करता है, राइट। तो वह एनर्जेटिक ना होकर फीलिंग टायर्ड होता है, जिसकी वजह से भी उसकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देन हो सकता है माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है एडल्ट में एनीमिया हो जाए, राइट। फिर इससे जो है इम्यूनिटी कम होती है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। इरिटेबिलिटी या क्या हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा। तो जो है कई बार क्या होता है कि जब वीकनेस होती है तो कॉन्स्टेंटली जो हेड एक है वो बना रहता है, इसकी वजह से इरिटेबिलिटी या डिजीनेस है ये अकर होता है। देन जो स्किन है, राइट, स्किन भी क्या होती है, लूज हो जाती है, हेयर जो है वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, राइट। और जो नेल्स हैं वो टूटने लगते हैं। देन सम पेशेंट सफ़र फ्रॉम परसिस्टेंस डायरिया हो जाएगा, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है ये कुपोषण जो है देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो एडल्ट में कोरोना के ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल सी इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा एंड मदर्स हो जाएगा, राइट। तो इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन वीमेन एंड क्या हो जाएगा, मदर्स हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन देयर इज हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए जब भी इंडिया में अगर हम देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट, तो प्रेगनेंसी के समय पर हाई न्यूट्रियस फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लेसेंटा कॉर्ड के माध्यम से जो बेबी है उसको एनर्जी प्राप्त होती है मदर से ही। और अगर मदर ही जो है बैलेंस डाइट या हम ये कहेंगे न्यूट्रियस फूड को कंज्यूम नहीं करेगी तो उससे एक तो जो भ्रूण है, राइट, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी। और सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा कि प्रॉपर जो है प्रेगनेंसी या हेल्थ मेंटेन के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर क्या हो, प्रॉपर न्यूट्रिशंस हो। परंतु हमारे इंडिया में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय पर भी जो है न्यूट्रियस फूड अवेलेबल नहीं कराया जाता है, जिस वजह से हेल्थ हजार्ड, राइट, बेबी एज वेल एज मदर का हेल्थ हजार्ड जो है इंक्रीज होता है। और लेबर पेन की वजह से जो है फिर डेथ भी हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाई जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो देखने को मिलती है। या कई बार क्या होता है कि जब डिलीवरी भी सेफ हो जाती है तो ड्यूरिंग जो है 40 डेज के अंदर, राइट, विद इन 40 डेज जब न्यूट्रियस फूड नहीं मिलता है तो मदर का जो हेल्थ है वो रिकवर नहीं हो पाता, इसी वजह से भी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर लेबर पेन की वजह से ड्यूरिंग जो है क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, 40 दिन के अंदर ही मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट रहती है। देन क्या हो जाएगा, राइट, सेकेंड, अ malnourished woman gives a malnourished child, राइट। और malnourished child होगा तो यहाँ पर IMR के अधिक होने की भी चांसेस होते हैं। अगर malnourished child होगा तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी और हो सकता है कि वो विद इन ईयर किसी भी बीमारी से इन्फेक्ट होकर उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। देन लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल हो जाएगा, राइट। आफ्टर 15 ईयर जो फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और अगर प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो उससे जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देन ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड वेरियस डिसीजेस, राइट। तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो इरेगुलर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन होगा तो जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग के केपेबल नहीं हो पाएंगी। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया जो है भारत में बड़े पैमाने पर जो है वीमेन में प्रेवलेंट है और हमें जो है हमारे देश को एनीमिया
इससे या इस जो डिसीज़ है इससे निपटने की बहुत ही जल्द से जल्द ज़रूरत है। थर्ड क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। अब देखिए, अगर चिल्ड्रन की भी अगर हम देखें तो माल न्यूट्रिशन होगा, इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो डिसीजेस होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जिस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई होने की चांसेस है। फिर अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। देन जो है बच्चे को इरिटेबिलिटी हो सकती है, राइट। फिर उसके बिहेवियर में क्या होती है, चेंजेस आ सकते हैं, जैसे एक्सेस क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा, राइट। तो एक्सेस क्राइंग हो जाएगा या चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इस तरीके से जो है बच्चे में जो है कॉमन जो एक तरीके से उसके बिहेवियर में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, राइट, फ्लैकी हो जाती है, और जो हेयर है, हेयर स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। साथ ही साथ जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, राइट। फिर स्वेलिंग अकर्स इन द एब्डोमेन एंड लेग्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो उसकी वजह से भी जो है स्वेलिंग एब्डोमेन में और लेग्स में जो है अकर होती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन कॉजेज द मैरस्मस एंड क्वाशी-ओरकर डिसीज, राइट। तो इस तरीके से बच्चों पर भी इसका जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फोर्थ क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड क्या हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज बाय 10 to 15%। और सीधी सी बात है, यदि 10 to 15% जो है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है तो उससे जीडीपी पर भी क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। देन तीसरी चीज़ ये कि माल न्यूट्रिशन की वजह से लोगों की एबिलिटी भी पर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, राइट। बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एबिलिटी कम होती है, साथ ही साथ जो स्किल है, स्किल पर भी क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और एक तरीके से हमारे देश में जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी संख्या में भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, राइट। या अनस्किल्ड जो लेबर हैं उनकी संख्या में भी क्या होता है, जो है उनकी संख्या बढ़ती है। फिर क्या हो जाएगा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, राइट। अगर हम देखें सो इंडिया इज़ हैविंग ह्यूज यूथ पॉपुलेशन, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन, इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन हो सकती है। परंतु यदि प्रॉपर हेल्थ नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ यदि प्रॉपर डाइट भी नहीं होगी, तब भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे फेवर में नहीं होगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में हो, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, एजुकेशन अवेलेबल हो और हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, राइट। इसके साथ ही जो जेंडर गैप है वो भी क्या होता है, वाइडेंस होता है। कैसे होता है, ये मैंने बताया था कि हमारे जो सोसाइटी है, राइट, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट। बॉयज़ को जो है प्रेफर किया जाता है, इसीलिए हमारी सोसाइटी में जो मेल्स आर फेड फर्स्ट, राइट, जो मेल्स हैं वो फैमिली में पहले खाना खा लेते हैं और फीमेल्स जो हैं जितना भी फूड बच जाता है उसको बाद में इंटेक करती हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो न्यूट्रियस डाइट है वो मेल के लिए होती है, और कई बार हो सकता है कि जो न्यूट्रियस फूड जो है, या सीधी सी हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए, वीमेन के लिए जो है न्यूट्रिशन के उतने अधिक सोर्सेज जो हैं अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। इस वजह से जो एनीमिया है वो ज़्यादातर वीमेन में पाया जाता है, और इस वजह से फिर क्या होता है, जेंडर गैप भी बढ़ता है। तो ये हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या हो जाएगा, द इमरजेंस ऑफ डिसीजेस हो जाएगा, जिसको हम डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं, राइट। सी अगर हम देखें विटामिन, राइट, विटामिन को प्रोटेक्टेड फूड भी बोला जाता है, वाइटामिन्स, राइट। वाइटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टेड फूड। इफ़ वी टेक और वी कंज्यूम वाइटामिन्स देन डेफिनेटली हमारी बॉडी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट इफ़ हम वाइटामिन्स को कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से कई प्रकार की डेफिशिएंसी जो डिसीजेज हैं वो होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिसीजेज अकर होती है उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्वाशी-ओरकर डिसीज़ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, मारास्मस डिसीज़ हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें तो बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन क्या होता है, मोस्ट रिक्वायर्ड होता है,
क्योंकि अगर हम देखें तो प्रोटीन वह न्यूट्रिएंट होता है जो कि सेल डिवीज़न के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, या हम क्या कहें कि फिजिकल ग्रोथ के लिए प्रोटीन जो है वो क्या होता है, मच रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए अगर प्रोटीन का इंटेक कम होगा तो उससे बच्चों पर इसका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन, तो अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे बच्चों में जो है क्वासी-ओरकर रोग हो जाता है। व्हाट इज क्वासी-ओरकर? राइट, बॉडी इज थिन एंड स्टमक इज प्रोट्रडिंग, राइट, और इस वजह से बच्चों को क्या होता है, क्वासी-ओरकर डिसीज हो जाता है। और कई बार राइट जब बच्चे में बोथ एक तो एसेंशियल कैलोरीज भी अवेलेबल नहीं होती हैं, साथ में प्रोटीन भी अवेलेबल नहीं होता है, तो एसेंशियल कैलोरीज और प्रोटीन दोनों की अवेलेबल ना होने की वजह से जो मारास्मस डिसीज है वह देखने को मिलती है। फिर क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो अगर आयरन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी होगी तो उससे एनीमिया जो है देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो इंडिया में मोर देन 50% वीमेन पॉपुलेशन इज एनेमिक, और इस वजह से भी जो वीमेन की हेल्थ पर है उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देन क्या हो जाएगा, गाइटर डिसीज हो जाएगा। और हमें पता है कि गाइटर डिसीजेस अकर्स ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। और थायराइड में जो स्वेलिंग है वो किसकी वजह से आती है, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। तो इफ़ देयर इज अ लैक ऑफ आयोडीन होता है तो उसकी वजह से गाइटर रोग होता है, साथ ही साथ इससे ब्रेन डेवलपमेंट भी रुक जाता है। इसीलिए जो है डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। सो आयोडीन फूड को कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज गाइटर डिसीज हो सकती है। राइट, देन क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में पीपल प्रेफर टेस्ट ओवर हेल्थ, राइट, और टेस्टी फूड खाने के चक्कर में वो जंक फूड है, ऑयली फूड है, राइट, और स्पाइसी फूड है उसको कंज्यूम करते हैं, राइट, और इस वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। सो obesity increases or caused by consuming excess amounts और uncontrolled diet। और uncontrolled diet में मैक्सिमम जो है unsaturated fat, या हम जिसको कह सकते हैं कि फैट जो है अनसैचुरेटेड फैट, जैसे समोसा जलेबी, ये कंज्यूम करने से होता है। और इस वजह से जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी से फिर हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, स्टमक डिसीज़, डिप्रेशन एक्सेट्रा जो है वो होता है। तो ओबेसिटी अपने आप में एक जो है बिग चैलेंज होता है, और इसकी वजह से फिर अदर जो है डिसीजेज जो हैं वो अकर होती हैं। देन हो जाएगा वेरी डिसीज। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से वेरी जो है डिसीज़ अकर होती है। देन क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होती है। देन वीकनिंग ऑफ बोन्स, तो विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, और यदि विटामिन डी नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी से जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, राइट, और रिकेट्स जो डिसीज़ है वो हो जाती है, राइट, रिकेट्स डिसीज़ हो जाती है। देन नॉन क्लोटिंग ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। तो विटामिन के प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर, राइट, या इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का महत्वपूर्ण रोल होता है। और यदि विटामिन के ही कंज्यूम नहीं होगा तो उससे नॉन क्लॉटिंग ऑफ क्या होगा, ब्लड होगा, जिससे कई बार एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में टाइम से अगर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए तो वहाँ पर किसी भी पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। देन क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी हो जाएगा। अब हमें पता है कि विटामिन ई के कंजम्पशन से ही जो है फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, और यदि विटामिन ई को कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो उससे फर्टिलिटी क्या होती है, जो है डिक्रीज होती है। और इसके वजह से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्या होगा, फर्टिलिटी होगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अब हम यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं कि माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स क्या होते हैं या सिम्टम्स क्या होते हैं।
राइट, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स या माल न्यूट्रिशन के क्या हो जाएंगे, इंडिकेटर्स को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, विकास ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से लो बर्थ वेट होता है, राइट, और लो बर्थ वेट होगा तो उससे जो इन्फेंट है उसकी इम्यूनिटी भी कम होगी। तो माल न्यूट्रिशन का पहला सिम्टम क्या हो जाएगा, लो बर्थ वेट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, स्टंटिंग हो जाएगा। स्टंटिंग मतलब क्या हो जाएगा, राइट, लो हाइट अकॉर्डिंग टू एज, राइट, तो स्टंटिंग हो जाएगा। देन वेस्टिंग हो जाएगा। स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट अकॉर्डिंग टू एज। देन क्या होता है, वेस्टिंग, राइट, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। देन अंडर वेट हो जाएगा, लो वेट अकॉर्डिंग टू एज। देन क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आयरन की कमी से, विटामिन ए की डिफिशियंसी, और जितने भी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, राइट, और सब विटामिन की कमी से जो है डेफिशिएंसी रोग हो जाते हैं। देन आयोडीन की आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती हैं। देन हैविंग रिंकल्ड येलो स्किन, जो स्किन है उसमें रिंकल पड़ जाते हैं क्योंकि वीकनेस आ जाती है। देन जो मसल लूजनिंग एंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट, जो हेयर हैं वो ड्राई हो जाते हैं। साथ ही साथ जो चाइल्ड हैं वो फ्रीक्वेंट क्या होते हैं, इन्फेक्शंस, उनको इन्फेक्शंस होते हैं और वो बार बार क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं, राइट। सो ये है, दीज वर द सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, राइट। अब हम यहाँ पर माल न्यूट्रिशन इन इंडिया को समझते हैं, राइट, एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट, assess the malnutrition condition in India, right? So this 5 marker question may be asked in the examination, right? अब एक बात चीज समझिए कि जब कभी भी हमको माल न्यूट्रिशन को इंडिया में असेस करना हो, सो थ्रू लेटेस्ट रिपोर्ट और लेटेस्ट डाटा वी कैन असेस द सिचुएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, राइट। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, आई एम यूजिंग द प्रेजेंट डाटा। हो सकता है कि कुछ समय पश्चात जो है लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है रिलीज हो जाए, सो यू कैन इंक्लूड द लेटेस्ट डाटा इन योर नोट्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डाटा उसके अनुसार हम इंडिया में माल न्यूट्रिशन को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इंडिया वाज रैंक्ड 10th अमंग कंट्रीज विद लोएस्ट अंडरवेट चिल्ड्रन इन 2017, राइट। तो जो अंडरवेट चिल्ड्रन थे, राइट, उस कैटेगरी में जो अगर हम देखें तो यूनिसेफ के अनुसार 2017 में जो अंडरवेट चिल्ड्रन थे, राइट, उन देशों की लिस्ट में इंडिया का प्लेस क्या था, 10th था, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की सिचुएशन बेहतर नहीं है। साथ ही साथ इन द ईयर 2019 अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मैगजीन द लेसेंट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू report released by the magazine The Lancet in year 2019, right, in year 2019 out of 1.04 million deaths, right, of children under the 5 years age in India, almost 2/3 of deaths are due to malnutrition. तो द लेसेंट मैगजीन के अनुसार 2019 में जो 1.0 मिलियन डेथ अकर हुई है चिल्ड्रन की, राइट, अंडर 5 जो 1.04 मिलियन जो डेथ्स अकर हुई हैं अंडर 5 चिल्ड्रन की, उनमें से 2/3 जो डेथ है वो बिकॉज ऑफ क्या है, माल न्यूट्रिशन है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्या है, वरिंग है। इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, राइट, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1990 से 2018 के बीच में, राइट, इंडिया ने जो है 1990 से 2080 के बीच में जो है कई पॉलिसीज़ को लॉन्च किया है, और इन पॉलिसीज़ को या इन स्कीम्स की वजह से इंडिया में जो पॉवर्टी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। बट इंडिया में पॉवर्टी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियसनेस या न्यूट्रियस फूड का जो हैबिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही इंडिया में पॉवर्टी डिक्रीज़ हो रही है, बट माल न्यूट्रिशन, हंगर जो है अभी भी क्या है, उसी स्थिति में बने हुए हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज्ड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स
चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट का जो है डाटा अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट, तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट है, राइट। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 out of 3 children under the age of 5 in the world suffers from mild malnutrition and underweight, right। तो इसके अनुसार प्रत्येक 3 में से एक जो चाइल्ड है वो मॉल न्यूट्रिशन से और अंडरवेट से सफ़र कर रहा है। अब अगर हम देखें, अराउंड 200 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड एंड एवरी सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया, राइट। तो 200 जो चिल्ड्रन है, राइट, अराउंड 200 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हैं, और उनमें से जो एवरी सेकेंड चिल्ड्रन है वो इंडिया का है, और वह किससे सफ़र हो रहा है, माल न्यूट्रिशन से ही क्या हो रहा है, सफ़र कर रहा है। द रिपोर्ट आल्सो रिवील्ड दैट इन द ईयर 2000 अबाउट 8.8 लाख चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाइड ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो 8.8 जो लाख चिल्ड्रन है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, राइट, विच इज़ आल्सो मोर देन नाइजीरिया। अगर हम देखें तो नाइजीरिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही कम है। नाइजीरिया में माल न्यूट्रिशन की वजह से केवल 8.6 जो अंडर 5 चिल्ड्रन है उनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान में केवल 4.09, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में केवल 2.9। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8.8 लाख जो चिल्ड्रन है अंडर 5, उनकी डेथ जो हुई है वो 2018 में हुई है, राइट। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में 200 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो मॉल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। उसमें से एवरी सेकेंड जो चाइल्ड है वो भारत में माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, और 2018 में 8.8 लाख जो चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 5 वो माल न्यूट्रिशन की वजह से ही उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स शो दैट ओनली 9.6% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन एज 6 to 23 months इन इंडिया गेट मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। समझ रहे हैं, मतलब 6 to यहाँ पर 23 क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा, राइट। तो अंडर हम सीधा अगर हम देख लें तो कितना हो जाएगा, 23 मंथ, मतलब 24 मंथ, मतलब 2 साल। तो 2 साल से कम बच्चों की अगर हम देखें तो 9.6% जो बच्चे हैं उनको ही केवल और केवल जो मिनिमम एक्सेप्टेड डाइट है वो प्राप्त हो रही है। मतलब अंडर 2 एज के जो बच्चे हैं उनमें से 85% को तो जो मिनिमम डाइट है वो प्राप्त ही नहीं हो रही है। साथ ही साथ, राइट, and if we look at the statistics of the year 2017, 23% of women and 20% of men of the country are facing malnutrition among क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। तो एडल्ट में 20% क्या हो जाएंगी, वीमेन एंड 23% वीमेन एंड 20% जो मैन है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, राइट। और इसके साथ ही these facts related to malnutrition illustrates the concern about scheme launched in 1990s to tackle the challenges of malnutrition in the countries, right। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये फैक्ट यही बताते हैं कि 1990s में जो माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए जो स्कीम लॉन्च किए गए थे वो उतने नाकाफ़ी नहीं है। और इस बारे में जो है अमर्त्य सेन ने यहाँ पर कहा है। तो नोबेल लेटरेट इन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा है कि द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड हंगर इन द कंट्री इज वेरी डेंजरस, राइट, वेरी डेंजरस, एंड न्यू ऑप्शन शुड बी फाउंड एट द अर्लीस्ट टू डील विद इट। आफ्टर बर्थ children do not get nutrition they need. In India, the situation is such that children are neither vaccinated properly nor do they get proper system of treatment. In such a situation, problems like malnutrition जो है becomes more serious. तो इंडिया में malnutrition की सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी प्रॉपर नहीं होता है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ये जो है अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया है, राइट। नाउ वी विल सी, राइट, माल न्यूट्रिशन इन मध्य प्रदेश। अब माल न्यूट्रिशन की जो सिचुएशन है उसको हम मध्य प्रदेश में समझते हैं, राइट। सो वी विल स्टडी माल न्यूट्रिशन इन मध्य प्रदेश, राइट।
तो देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फोर्थ मध्य प्रदेश इज सेकेंड इन द टर्म्स ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार मॉल न्यूट्रिशन में इंडिया इज हैविंग सेकेंड प्लेस, राइट। और चूंकि मध्य प्रदेश का सेकेंड प्लेस है, देयरफॉर मध्य प्रदेश इज नोन एज इथोपिया ऑफ इंडिया। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार मॉल न्यूट्रिशन में मध्य प्रदेश का प्लेस सेकेंड है, इसलिए मध्य प्रदेश को इथोपिया ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि हमारे लिए सेम की बात है। इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ ही जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है, इसके अनुसार जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को समझते हैं। बिटवीन 2009 एंड 2015, तो 2009 से 2015 के बीच में 1 करोड़ 10 लाख चिल्ड्रन वर फाउंड मॉल न्यूराइज्ड इन द स्टेट। तो हमारे स्टेट में 2009 से 2015 के बीच में 1 करोड़ 10 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषित पाए गए हैं या मॉल न्यूराइज्ड जो हैं पाए गए हैं। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 9.3% ऑफ दीज आर सिवियरली मॉल न्यूराइज्ड। तो 1 करोड़ 10 लाख जो हैं मॉल न्यूराइज्ड चिल्ड्रन हैं हमारे देश में, राइट। और इनमें से भी 9.3 जो है वो क्या है, सिवियरली मॉल न्यूराइज्ड है। वहीं अगर हम देखें, सो अकॉर्डिंग टू वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, बिटवीन जनवरी 2016 एंड जनवरी 2018 अबाउट 57,000 चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन। मतलब 2017 से जनवरी 2018 के बीच में विद इन द पीरियड ऑफ 2 years 57,000 चिल्ड्रन वर डेड बिकॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, राइट। और जो मॉल न्यूट्रिशन रेट है वो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, 64% है, राइट। सो मॉल न्यूट्रिशन रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 64% टू 67% इन द स्टेट, राइट। और अगर हम देखें, वाइल इट हैज़ इंक्रीज्ड 80% इन द ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में तो 80% जो पीपल हैं वो मॉल न्यूट्रिशन से क्या है, अफेक्टेड है। मध्य प्रदेश में जो मॉल न्यूट्रिशन रेट है वो 64 से इंक्रीज हो चुकी है 67, राइट। और ट्राइबल एरिया में कितना है, 80% इन द ट्राइबल एरिया, विच इज़ दैट मॉल न्यूट्रिशन हैज़ इंक्रीज फर्दर इंस्टीड ऑफ बीइंग डिक्लाइंड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में डिक्लाइन होने की तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में जो मॉल न्यूट्रिशन रेट है वो क्या है, इंक्रीज हुई है और 64 से बढ़कर 70 हो गई है। और ट्राइबल एरिया में कितनी है, 18 है। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया, विशेषकर जो मध्य प्रदेश है उसमें मॉल न्यूट्रिशन की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, राइट। वहीं मध्य प्रदेश में 52.5, राइट। तो 52.5% गर्ल्स एंड वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 years and 25.5% men are suffering from anemia। तो आप समझिए मध्य प्रदेश में 52.5 गर्ल्स एंड वीमेन, राइट, 15 से 49 की एज में एनीमिया से सफ़र कर रही हैं, और वहीं 25% जो मेन है वो एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। साथ ही इन द स्टेट 3 out of 4 चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3rd year आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। फिर जो 42% ऑफ चिल्ड्रन है वो स्टेंटिंग है। तो मध्य प्रदेश में स्टेंटिंग जो है 42% ऑफ द चिल्ड्रन है वो स्टेंटिंग के क्या है, विक्टिम है। तो वहीं अमंग द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, 4 out of 1000 सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। तो 1000 बच्चों में से 4 को नाइट ब्लाइंडनेस की क्या है, डिसीजेज है। वहीं 42% जो है वो क्या है, स्टेंटिंग का शिकार है। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड द मॉल न्यूट्रिशन, राइट। So in the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.